দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। सो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, वैसे आसान होता है। देखो अब हम लोग ना कुछ जो है साइन यूज करेंगे चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि वो अपने समझने के लिए, जैसे मान लो अगर हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ ये समझाना चाहते हैं, तो मान लो ए एंड बी है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये कपल के लिए, ठीक है। और मान लो ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, तो इनके लिए मान लो ऐसा यूज करें, लाइक पी क्यू, मान लो भाई बहन है या भाई भाई है, वो भी हो सकता है। ब्रदर एंड मदर, सॉरी, सिस्टर। अच्छा, ब्रदर एंड सिस्टर तो लिखा, ब्रदर एंड ब्रदर, तो फिर मान लो पी और आर, तो ऐसे लिख दिया। और सिस्टर एंड सिस्टर, तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ऐसे कुछ बताना है, P इज, ऐसे मान लो P इज एस सन, ठीक है। P जो है वो ए का बेटा है, तो इस चीज को समझाने के लिए ऐसे P लिखेंगे, ऐसे A लिखेंगे, सॉरी ऐसे A, और ऐसे एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये ट्री के जैसा, ठीक है, तो ट्री के जैसा, तो पी जो है, पी इज एज सन, तो ए जो है वो आगे का जनरेशन में हो जाएगा और पी उसके बाद वाला जनरेशन, ठीक है। और मेल के लिए माइनस, फीमेल के लिए प्लस, ऐसा यूज कर सकते हो। बाकी उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि माइनस ही यूज करना पड़ेगा, प्लस ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो एक तो यहाँ से करते हैं, तब तक एक्सरसाइज बाद में करते हैं, यहाँ से कुछ देख लेते हैं पॉइंट। जैसे देखो, फादर्स फादर, ग्रैंडफादर होता है, मतलब पापा के पापा, फादर्स मदर, ग्रैंड मदर, फादर्स ब्रदर, मतलब মানে যেটাকে বাংলাতে কি বলে, বাবার ভাই, কাকু বা জেঠু। কাকু জেঠু, হ্যাঁ। ইংরেজিতে দুটোই আঙ্কেল। ফাদার্স সিস্টার মানে বাবার বোন, তাহলে কি হয়, পিসি, সেটা কি হয়, আন্ট, ঠিক আছে। আন্ট। চিলড্রেন অফ আঙ্কেল মানে কাকু জেঠুর ছেলে মেয়েরা কি হবে, কাজিন। কাজন হয়, কাজিন ঠিক আছে। ব্রাদার বা সিস্টার। কাজন ব্রাদার, কাজন সিস্টার। ওয়াইফ অফ আঙ্কেল মানে জেঠিমা বা কাকিমা, আন্ট। আন্ট। চিলড্রেন অফ আন্ট মানে ওই কাকু জেঠুর ছেলেমেয়েরা আমাদের কি, কাজন ব্রাদার সিস্টার। চিলড্রেন অফ আঙ্কেলও যা হবে, চিলড্রেন অফ আন্টও তাই হবে। হাজবেন্ড অফ আন্ট, আঙ্কেল। এটা বাবার দিক থেকে, দেখো এই পুরো রিলেশনটা বাবার দিক থেকে ছিল। যদি এটাই ম্যাটারনাল সাইড মানে মায়ের দিক থেকে, এটা হচ্ছে প্যাটার্নাল সাইড মানে বাবার দিক থেকে, মায়ের দিক থেকে হলে মায়ের বাবা, সেটা কিন্তু এখানে ইংরেজিতেও আলাদা, যেমন কি বলে মায়ের বাবাকে বাংলাতে দাদু। দাদু, আর বাবার বাবাকে ঠাকুরদা। হ্যাঁ। তো এইটা দেখো এখানে ইংরেজিতে বলছে ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডফাদার, আর এটা হলে শুধু গ্র্যান্ডফাদার। মায়ের মা মানে যেটা দিদা বলে, তাই তো, তো এটা বলছে ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডমাদার। মায়ের ভাই মামা, মামা হলে ম্যাটারনাল আঙ্কেল। প্যাটার্নালটা অ্যাড করতে হয় না, ম্যাটারনালটা অ্যাড করতে হয় না। বাবার দিক থেকে কিছু হলে অনলি গ্র্যান্ডফাদার, মায়ের দিক থেকে হলে ম্যাটারনাল গ্র্যান্ডফাদার, এরকম। মায়ের বোন তাহলে কি হয়, মাসি, আন্ট। চিলড্রেন অফ ম্যাটারনাল আঙ্কেল, মামার ছেলে মেয়েরা, ওরাও ভাই বোন, কাজিন ব্রাদার বা কাজিন। সিস্টারই হবে। ওয়াইফ অফ ম্যাটারনাল আঙ্কেল মানে মামার স্ত্রী, মামি, ম্যাটারনাল আন্ট। আচ্ছা, গ্র্যান্ডফাদার সন মানে, গ্র্যান্ডফাদার মানে বাবার বাবা, তার ছেলে কি হবে, বাবা বা কাকু বা জেঠু, মানে আমার ঠাকুরদার ছেলে, সে যদি সেটা বাবা হতে পারে বা কাকু জেঠু হতে পারে। গ্র্যান্ড মাদার সন, তাহলে এটা মানে বাবার দিক থেকে মানে ঠাকুমার ছেলে, সেই একই জিনিস, বাবা বা কাকু বাবা জেঠু, বা হ্যাঁ কাকু জেঠু। গ্র্যান্ডফাদার্স অনলি সন, যদি অনলি সন হয় তাহলে কি হবে,
মানে বাবা। ঠাকুরদাদার একমাত্র বাবাই হবে। ছেলে। হ্যাঁ, তাহলে আমার যদি ঠাকুরদাদা হচ্ছে তাহলে বাবা, তখন আর আঙ্কেলের কোনো ব্যাপার না, একমাত্র হ্যাঁ, ছেলে হলে তো একটাই হয়ে গেল। আবার গ্র্যান্ড মাদার্স অনলি সন, তাহলে আবার এই একই কথা, ফাদার। father। মাদার্স অর ফাদার্স মাদার মানে মা অথবা বাবার মা। বাবার মা তো ম্যাম গ্র্যান্ডমাদার। হ্যাঁ, আর এটা ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ডমাদার হবে, কিন্তু এখানে দুটোকেই গ্র্যান্ডমাদার লিখেছে, যদিও এখানে কিন্তু হ্যাঁ, ম্যাটার্নাল গ্র্যান্ডমাদার। হ্যাঁ ম্যাটার্নাল তাহলে আইডেন্টিফাই করতে সুবিধা হয়, এরকম কোনো অসুবিধা নেই গ্র্যান্ডমাদার লিখলে। সনস ওয়াইফ মানে ছেলের বউ, ডটার ইন ল। ডটার ইন ল। হ্যাঁ, ডটার্স হাজবেন্ড, তাহলে সে কি হবে? ডটার্স হাজবেন্ড মানে মেয়ের সান হাজবেন্ড, ইন ল। হ্যাঁ মানে জামাই যেটাকে বলে সান ইন ল। জামাই। হ্যাঁ, হাজবেন্ডস অর ওয়াইফস সিস্টার মানে নিজের হাজবেন্ড, যদি কেউ মেয়ে হয় ননদ তাহলে বা হাজবেন্ড। এরম কিছু বলে, হ্যাঁ তাই না ম্যাম হ্যাঁ বাংলায়? হ্যাঁ হ্যাঁ ননদ বলে। তো মানে হাজবেন্ড যদি কেউ ফিমেল তাহলে তার জন্য হাজবেন্ডটা অ্যাপ্লিকেবল হবে, যদি কেউ মেল তার জন্য ওয়াইফ অ্যাপ্লিকেবল হবে। তাহলে স্ত্রীর যদি কোনো বোন থাকে তাহলে সেটাও হয় কি সিস্টার ইন ল, ঠিক আছে, ইন ল হয়ে যায় ওটা, মানে ইংরেজিতে হচ্ছে লিগালি যে বোন, লিগাল ভাবে হয়েছে আর কি এইভাবে। তো ব্রাদার্স হ্যাঁ ma'am। সন ভাইয়ের ছেলে, ভাইয়ের যদি ছেলে হয় তাকে বলে নেফিউ, মানে ওটাকে বাংলাতে কি বলে, ভাইপো নাকি? ভাইপো। হ্যাঁ। ভাইপো। ব্রাদার্স ডটার, ভাইয়ের যদি মেয়ে থাকে তাহলে ভাইঝি ভাইঝি, বলে ভাই। মনে হয় হ্যাঁ এটা। ভাইঝি, নিস। আঙ্কেল অর আন্টস সন অর ডটার, কাজিন ব্রাদার বা কাজিন সিস্টার। ব্রাদার বা সিস্টার, কাজিন লিখে দিয়েছে, যদি সন হয় তাহলে ব্রাদার, আর যদি ডটার হয় তাহলে সিস্টার। সিস্টার। সিস্টার্স হাজবেন্ড বোনের হাজবেন্ড, তাহলে কি হয়? জামাইবাবু যেটা বলো তোমরা, তো ব্রাদার ইন ল, ঠিক আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। ব্রাদার্স ওয়াইফ যদি ভাই থাকে তার স্ত্রী, তাহলে যেটা সিস্টার ইন ল। সিস্টার ইন ল, মানে যেটা কি বৌদি বলে, ঠিক আছে। হুম। গ্র্যান্ডসন্স আর গ্র্যান্ড ডটার্স ডটার, গ্র্যান্ডসন আর গ্র্যান্ড ডটার্স ডটার মানে আহ মানে কি বলবো, মানে ঠাকুমার স্টেজে গিয়ে এ করতে হবে, মানে গ্র্যান্ডসন্স আর গ্র্যান্ড ডটার্স ডটার মানে আমার ধরো গ্র্যান্ডসন মানে আমার ছেলের ছেলে, তার ছেলে হ্যাঁ ম্যাম, বা তার মেয়ে, মেয়ে। হ্যাঁ তার ছেলে বা আচ্ছা মেয়ে, এই আচ্ছা। যে হ্যাঁ আহ, হ্যাঁ। তো বলেছে না, মেয়ের মেয়েই বলেছে, আচ্ছা তাহলে বলেছে গ্রেট গ্র্যান্ড ডটার, মানে তিনটে স্টেজ হয়ে গেলে গ্রেট গ্র্যান্ড ডটার, মানে যদি কারো ঠাকুমা থাকে ধরো এক্সাম্পল, তাহলে ঠাকুমা এই জন্য বলছে বাবার মা, ঠিক আছে। এবারে ঠাকুমার দিক থেকে যদি ভাবি তাহলে তার জন্য বাবা হয়ে গেল ছেলে, এবারে তোমরা হয়ে যাবে, আমরা হয়ে যাবো ম্যাম গ্রেট গ্র্যান্ড ডটার না তাহলে। তোমরা হবে গ্র্যান্ড ডটার, তোমাদের ছেলে মেয়ে আচ্ছা। যখন হবে তখন হয়ে যাবে গ্রেট গ্র্যান্ড ডটার, তোমাদেরকে নাতি বলবে, নাতি বা নাতনি, হ্যাঁ, ঠিক ওটা আছে। এটা গ্র্যান্ড তো ডটার, তার তার কিছু পরের স্টেজ হইলে হলে পরে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড। গ্র্যান্ড ডটার, ঠিক আছে। আচ্ছা। হ্যাঁ ma'am। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर बोल रहा है द एफिशिएंसी इन डूइंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लड रिलेशन डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज ऑफ द ब्लड रिलेशन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशंस आर गिवन बिलो, আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট রিলেশন দিয়েছে জেনে নাও। বলছে মাই মাদার্স অর ফাদার্স সন ইজ মাই ব্রাদার, মানে আমার মা বা বাবার ছেলে আমার কি হবে, এরকম কথাগুলো দেয় আর কি। তাহলে মা বা বাবার ছেলে ম্যাম দাদা, হ্যাঁ ব্রাদারই ভাই, হবে। হ্যাঁ দাদা বা ভাই যাই হোক, ঠিক আছে। হ্যাঁ। আবার বলেছে মাই মাদার্স অর ফাদার্স ডটার, তো সিস্টার, আমার বাবা মা মায়ের মেয়ে, তাহলে আমার বোন হবে বা দিদি হবে, কিন্তু এখানে তো বোন হোক বা দিদি হোক সিস্টারই কথাটা ইউজ হবে। মাই মাদার্স অর ফাদার্স ফাদার ইজ মাই, আমার বাবা বা গ্র্যান্ডফাদার আচ্ছা, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ গ্র্যান্ড। দাদু হয়ে গেল আর কি, ঠাকুরদা দাদু। মাই মাদার্স অর ফাদার সিস্টার ইজ মাই আন্ট, মানে আমার বাবা বা মায়ের বোন আমার আন্ট, মানে বাবার তরফ থেকে হলে পিসি, মাসি কিন্তু বা পিসি হচ্ছে আন্টি। মাসি বা পিসি। আর এখানে আমরা যদি আইডেন্টিফাই করতে চাই তাহলে ম্যাটার্নাল আন্ট আর ম্যাটার্নাল শুধু আন্টি। নর্মাল শুধু আন্ট। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে মাই মাদার্স অর ফাদার্স ব্রাদার ইজ মাই আঙ্কল, বাবার ভাই ম্যাটার্নাল। মানে হ্যাঁ আঙ্কেল, হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ মামা বা জেঠু বা কাকা। হ্যাঁ। তারপরে বলছে মাই সনস ওয়াইফ ইজ মাই ডটার ইন ল, মানে আমার ছেলের বউ আমার কি হবে, বৌমা, ডটার ইন ল। হ্যাঁ ম্যাম। মাই ডটার্স হাজবেন্ড ইজ মাই সন ইন ল, আমার মেয়ের যদি হাজবেন্ড তাহলে সে কি হয়ে যাবে, আমার
सन इन लॉ है मैम। सन इन लॉ, माई ब्रदर सन इज माई নেফিউ। এগুলো আমরা একটু আগেও দেখলাম, ব্রাদার সন মানে ভাইয়ের ছেলে নেফিউ, ভাইয়ের মেয়ে হলে নিস, বোনের হাজবেন্ড ব্রাদার ইন ল, ভাইয়ের বউ সিস্টার ইন ল, হাজবেন্ডস অর ওয়াইফ সিস্টার ইজ মাই সিস্টার ইন ল। মানে হাজবেন্ড যদি কেউ ফিমেল হয় আর মেল হলে ওয়াইফ, তার বোন কি হয়ে যাবে, সিস্টার ইন ল। মাই হাজবেন্ডস অর ওয়াইফস ব্রাদার ইজ মাই ব্রাদার ইন ল। মানে আমার হাজবেন্ড অথবা যদি হাজবেন্ড হয় হাজবেন্ড, কারোর জন্য অ্যাপ্লিকেবল, ওয়াইফ হলে ওয়াইফ, ব্রাদার ইজ মাই ব্রাদার ইন ল। আচ্ছা, মাই আঙ্কেলস অর আন্টস সন অর ডটার ইজ মাই কাজিন, মানে আঙ্কেল আন্টের ছেলে মেয়েরা আমার কি হয়ে যাবে, কাজিন ব্রাদার কাজিন সিস্টার, ঠিক আছে। মাই ওয়াইফস ফাদার or husband's father is my father in law. আচ্ছা, my wife's mother or husband's mother is my mother in law. আচ্ছা, my father's wife is my mother, এই ধরনের দিয়ে দেয়, ঠিক আছে। my mother's husband is my father, ফাদার হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। my sons or daughters son is my grandson, মানে আমার ছেলে বা মেয়ের ছেলে যদি হয় তাহলে গ্র্যান্ডসন, আর my sons or daughters daughter is my granddaughter, মানে নাতি নাতনি, হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। তো এবারে এখানে দেখি কিভাবে করতে হবে। अच्छा, देखो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखा है, ठीक है, ये अगर नहीं भी लिखते उतना इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, अभी करते करते समझ जाएंगे हम लोग। हस्बैंड और वाइफ अगर रिलेशन दिखाना है तो हम लोग ऐसे एरो यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, मतलब चाहे तो करना। तो चल नहीं रहा, बंद हो गया, पता नहीं, आज सब गड़बड़ी है। हाँ, अच्छा, अब ब्रदर अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं, सिस्टर और सिस्टर दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं। मेल के लिए ऐसे माइनस, फीमेल के लिए प्लस यूज कर सकते हैं, बाकी उल्टा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं करना चाहो तो मेल के लिए एम और फीमेल के लिए एफ यूज करोगे तो भी चलेगा, ये नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये जस्ट मतलब जैसे हम लोग करेंगे ना इसमें, तो इस तरीके का चीज यूज करना। और कपल वाला रिलेशन होगा तो ऐसे कर सकते हैं, अब तुम लोग चाहो तो ऐसे कर लो, उसमें इसमें ऐसे लगा लो, एक ही बात है, लेकिन कोई एक तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो कैसे करके होगा। पहला क्वेश्चन ये वाला कैसे करना है देख लो। बोल रहा है A is B's daughter, B is C's mother, D is C's brother, how is D related to A? तो कैसे करके क्वेश्चन करना है। सबसे पहले बोला है कि D कैसे A के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो जिसका रिलेशन पूछा है हमें उन दोनों में से किसी एक को खुद मान लेना है, ठीक है, मतलब खुद को D या A मानो, ठीक है। अब कौन सा मानने से बेटर होगा, जो सबसे छोटा होगा, मतलब जैसे देखो अगर डी का मतलब डी कौन है ये पता करना है तो ये लाइन से पता चलेगा, डी इज सीज ब्रदर, तो तुम लोग खुद को किसी का ब्रदर मान ही सकते हो अपने एज के हिसाब से, मतलब इसमें तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग थोड़ा आसान हो जाएगा। और ए कौन है, ए इज बीज डॉटर, ठीक है। तो अब तुम लोग बोलोगे कि हम लोग खुद को ब्रदर मानते हैं, बिकॉज तुम लोग जो लड़के हो सोचोगे कि हम लोग ब्रदर मान लेते हैं, लड़की सोचेगी कि हम जो है डॉटर मान लेते, मतलब खुद को ए मान लेते, बाकी दोनों से आंसर सेम आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि स्कोप ऐसा नहीं होगा कि मतलब लड़की ही मान सकते हो या लड़का, हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन है कि खुद को लड़की मानना पड़ेगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन है कि खुद को लड़का ही मानना पड़ेगा। इसमें दो तरीके से ही हो जाएगा, तो हम लोग इसमें खुद को डी या ए में से कुछ भी मान सकते, कुछ भी मान के कर सकते। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से दिखा देते। पहले जैसे अगर मान लो कि हम लोग खुद को मान लेते हैं सपोज डी, क्योंकि पहले डी दिया हुआ है तो हम डी मान लेते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे मी, ठीक है, डी हम खुद है। अब बोल रहे डी इज सीज ब्रदर, तो फिर मेरा भाई कौन है, सी, तो हम इस भाई है तो फिर एक ही ट्री में हुआ ना, मतलब बगल में कर देंगे, तो सी कर दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है डी इज सीज ब्रदर, तो सी का भाई डी है, तो सी कौन है, मेल है कि फीमेल वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी बहन भी तो हो सकती है या फिर भाई भी हो सकता है। अच्छा, अब सी देखो कौन है, बी इज सीज मदर, तो बी जो है वो सी की माँ है, तो मेरी भी क्या होगी, ठीक है, हाँ तो मैम। बी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, सब मेरे हिसाब से लिखना है, ठीक है, मतलब डी के हिसाब से यानी मेरे हिसाब से, तो मेरी माँ हो गई बी। अब फिर बोल रहा है ए इज बीज डॉटर, तो बी की जो डॉटर है वो ए है, मतलब मेरी एक बहन है, बी की डॉटर मेरी बहन हुई, क्योंकि बी तो माँ है ना, तो फिर मेरे लिए डॉटर नहीं, मेरे लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, सिस्टर,
वही तो लिखा था, ठीक किया मैंने। ए इज बीज डॉटर, तो ए जो है बी के डॉटर है, तो मेरी क्या होगी, बहन, ठीक है। अब सिस्टर। पूछा है, हाँ, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी के साथ ए का रिलेशन क्या है, सिस्टर, ठीक है। अब देखो आंसर, डी इज डॉटर, ए इज डॉटर। अच्छा, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए बोला है, डी रिलेटेड, सिस्टर ही तो। ओ मैंने उल्टा लिख दिया क्या, बी इज सीज मदर, हाँ, बी इज, मैम मैम এটা ম্যাম ওর মা হলে তো ওরও মা হবে ডি এর। ম্যাম এখানে জানতে চেয়েছে যে যে হাউ ইজ ডি রিলেটেড টু এ, মানে ডি কে এর ए इज बीज डॉटर, तो ए मैम जो है वो बी की बेटी है, ए इज बीज डॉटर, तो बी तो मदर ही हुई, ए उसकी बहन हो गई, सॉरी बेटी हो गई, बी इज सीज मदर, बी जो है वो सी की भी माँ है, तो फिर सी और ए तो दोनों ম্যাম की আমি माँ বলবো, तो, हाँ है, बोलो। ম্যাম এখানে বলেছে হাউ ইজ ডি রিলেটেড টু এ, মানে এর সম্পর্কে ডি কে হয়, তো ओ এর डी সম্পর্কে, रिलेटेड टू ए है, बोलो তারপরে। তো এর সম্পর্কে ডি কে হয়, তো এর সম্পর্কে তো ডি তো ওর ভাই হয়। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে আনসার দেখো কি দিয়েছে, ম্যাম কিন্তু অপশনে দেখুন ওটা ও কোনো ব্রাদার ডটার তো দিয়েছে নেই। তো, ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিকই Brother বলেছো দিয়েছে, অনিত, হাউ হ্যাঁ। इज डी रिलेटेड टू ए, डी कैसे ए के साथ रिलेटेड है, तो डी कौन, डी हम हो गए, तो हम ए के कौन है, हाँ ভাই। मैंने इधर देखा, ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, नहीं डी रिलेटेड टू ए है, ठीक बोले सोनिक, সেই জন্য তো आंसर কি হবে, ब्रदर, ব্রাদার। सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके होगा। इसके बाद वाला करके देखो, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पर, बाकी हम लोग का एक्सरसाइज से भी करेंगे। पी इज क्यूज ब्रदर, आर इज क्यूज मदर, एस इज आर्स फादर, टी इज एस इज मदर, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, तो अपने आप को पी या टी कुछ एक मानना है। अब पी क्या है, पी क्यू का भाई है, और टी क्या है, एस का मदर, तो फिर टी तुम लोग मत मानो, क्योंकि माँ वाला वो तुम लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो तुम लोग का ट्री पी से ही होना चाहिए। টি মানলে কি হবে না, টি বলছে কারো মা, তো ওইটা তোমরা রিলেট করতে কষ্ট হবে, তোমরা পি মানো। तो पहले ये पी लगाओ ऐसे, पी, पी इज क्यूज ब्रदर, ब्रदर या सिस्टर, तो पी लेकिन मेल है ना, पी इज क्यूज ब्रदर, तो पी मेल हो गया, जो पी को हम लोग खुद मान रहे हैं, तो पी मेल हो जाएगा, क्यू उसका ब्रदर या सिस्टर होगा, क्योंकि पी इज क्यूज ब्रदर। फिर बोल रहा है आर इज क्यूज मदर, तो आर जो है वो क्यू की माँ है, तो फिर मेरी भी रिलेटेड टू टी। आर इज क्यूज मदर, एस इज आर्स फादर, एस इज आर्स फादर, तो एस हमारे क्या हो जाएंगे, आर मतलब माँ के फादर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, और इसके ब्रैकेट में मैटरनल लगा सकते हो, क्योंकि माँ की तरफ से होने से मैटरनल ग्रैंडफादर होता है, पेरेंट्स मतलब पैटर्नल साइड होने से सिर्फ ग्रैंडफादर, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में तो जरूरी नहीं है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में रिलेशन जब निकालने के लिए बोलता है तो लिखा हुआ जरूरी है, तो ये मैटरनल लिख दिया, यहाँ पर मेल लिख दिया, और ये क्यों ब्रदर है कि सिस्टर पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। গ্রেট গ্র্যান্ডসন হবে, গ্রেট গ্র্যান্ডসন বি অপশন, হ্যাঁ তাই তো লিখেছে। टी इज एस इज मदर, टी इज एस इज मदर, तो अब एस की माँ टी ऊपर यहाँ आ जाएगा, तो मतलब ग्रेट, হচ্ছে ফিমেল। हाँ इसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड, नहीं माँ है ना, एस की माँ है, मतलब ना है नाना के, हाँ तो फिर ग्रेट ग्रैंड, हाँ এটা হবে, তাই তো গ্রেট গ্র্যান্ড মাদার। अब कौन হ্যাঁ किसका ম্যাম এইটাই रिलेशन, হবে।
P is related to A, P के साथ सॉरी P is P related मैम T, P के साथ T का रिलेशन क्या है? हाँ ग्रेट ग्रैंडसन, हाँ मतलब 2 पीढ़ी हो गया ना, ग्रेट ग्रैंड ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन मतलब ऑप्शन बी। देखो पहले P आएगा, P जो है बोला है Q का भाई, Q का भाई P है, जो कि खुद को हम लोग P मान रहे हैं, लेकिन Q फिर ब्रदर होगा कि सिस्टर नहीं पता, इसलिए B/S ब्रदर और सिस्टर के लिए लिखा है। फिर R जो है वो Q की माँ है, तो फिर मेरी भी माँ हो जाएगी। फिर R के जो फादर है वो S है, मतलब मेरे नाना जी, फिर उनकी माँ T, ऐसे दिया था, तो फिर ऐसे। थर्ड नंबर देखो, बोल रहा है A is B's brother, C is D's father, E is B's mother, A and D are brothers. How is E related to C? तो खुद को E या C क्या मानने से ठीक रहेगा तुम लोग के लिए? C is D's father, तो फादर तो मत मानो खुद को, ठीक है फिलहाल। तो E मान लो, E is B's brother, ये ठीक रहेगा। ओ सॉरी मदर, हाँ वही मान, अच्छा तो एक ही बात है, फादर मानो या हाँ, मतलब दोनों एक ही बात हो रहा है, जो मानना है मानो। अच्छा मुझे लगा ब्रदर है, ठीक है। तो ई और सी में से कुछ भी मान लो, मानो जो मानना चाहते हो। ई मान लेते, ई पहले लिखा है तो उसी को मान लेते वाइफ হবে हैं। बोलो वाइफ হবে দেখো কি বলেছে, আনসারটা তো করিনি, এটা দেখছি বলেছে ই ইজ ওয়াইফ অফ সি বলছে, ওয়াইফ ওয়াইফ হবে ম্যাম এটা। হ্যাঁ বলছে তো ওয়াইফ হবে आंसर, डी হবে आंसर, डी होगा इसका आंसर। देखो बोल रहा है मैंने पहले खुद को ई मान लिया, ठीक है। अब ई का देखो, बोल रहा है ई इज बीज मदर, तो फिर मेरा बेटा, ठीक है, बेटा या बेटी वो तो नहीं समझ में आ रहा है। बी ई इज बीज मदर, मतलब ये तो हो गया फीमेल, ठीक है। अब क्योंकि बेटा है तो नेक्स्ट जनरेशन तो नीचे एरो हो जाएगा, अगर ऊपर होगा मतलब अपर जनरेशन होगा तो ऊपर हो जाएगा। तो बी, अब बी मेरा बेटा है कि बेटी वो तो नहीं समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर लिख देते मेरा या तो डॉटर या तो ना सन, छेले हाँ बने। हाँ ई इज बीज मदर, ये ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा फिर इसके बाद बी है मेरे पास, तो ए इज बीज ब्रदर, तो बी का भाई भी है ए, ठीक है। तो ए मेरा क्या हो गया? बेटा, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, सी इज डीज फादर, बट सी डी तो है नहीं मेरे पास अवेलेबल। ए एंड डी आर, ए और डी मतलब भाई है। हाँ ए एंड डी ब्रदर, तो डी यहाँ और लिख देते, और एक सन। और एक बेटा है, ठीक है। अब देखते हैं डी वाला क्या बोला था। सी इज डीज फादर, सी जो है वो डी के फादर है, तो इसका मतलब सी मेरे क्या हो गए? हस्बैंड। तो ये यहाँ पर ऐसे लगा देते, सेम जगह पे हो जाएगा हस्बैंड, ठीक है। अब रिलेशन पूछा था ई के साथ सी का, तो हाउ इज ई रिलेटेड टू सी? तो ई वाइफ है सी की, एरकम ऐसे बनेगा वाइफ, यानी ऑप्शन डी। देखो ये जो एरो से बनाना है ना, ये सीखना पड़ेगा। अभी तो 1-2 लाइन हो रहा है, जब बहुत सारा एरो इधर उधर निकलेगा कैसे होगा, तो उसमें लिखने से ये वाला पैटर्न करते रहना, कैसे करके होगा। अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि पढ़ के ओरली कर पाओ, लेकिन वो एग्जाम के लिए ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के देगा, उसमें बिना लिखे नहीं कर पाएंगे। फोर्थ नंबर देखते हैं, देखो फोर्थ नंबर, A is sister of B, B is brother of ওটা C। কি মাদার হবে? দেখছি, হ্যাঁ তাই বলেছে, হ্যাঁ A। How is D related to A? तो D या A में से खुद को कुछ मानना है।
A is sister of B, C is the son of D. अच्छा, तो खुद को मतलब ये आप है A मान लेते हैं। डॉटर ही आंसर मदर है, A। हम्म हाउ इज D रिलेटेड टू A इज सिस्टर ऑफ B। A हम खुद को मान लेते हैं, A जो है वो फीमेल है, A इज सिस्टर ऑफ B। ठीक है, A is sister of B, B is the brother of C, B तो मेरा, इसका मतलब मेरा भी भाई हो गया, B is brother of C, C मेरी क्या हो जाएगी, या तो ब्रदर या तो सिस्टर, या तो ब्रदर या तो सिस्टर। C is the son, अच्छा वो बेटा है किसी का, तो फिर ब्रदर होगा, सिस्टर नहीं होगा। फिर बोल रहे C is the son of D, तो D फिर इसका मतलब हमारे पेरेंट्स में से कोई एक होंगे, तो या तो फादर या तो मदर। अब हमें पूछ रहा है कि डी कैसे रिलेट है ए के साथ, तो डी या तो पापा होंगे या तो मम्मी, तो फिर अब ऑप्शन में देखो माँ वाला ही ऑप्शन है, तो फिर इसका मतलब ये जो है ये फीमेल फिगर है, तो ये मदर है, ये फादर वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए। चार একটা এ তোমাদের। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम। अब देखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला बोला है कि B इज द ब्रदर ऑफ A हु, ये सब छोड़ो, लास्ट वाला देखते हैं। हाउ इज A रिलेटेड टू D, तो A या D में से खुद को क्या माने, तो A के बारे में कहा लिखा है B इज ब्रदर ऑफ A, और D इज मैटरनल ग्रैंडमदर, ये सब छोड़ो, तो खुद को A मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो A मानना पड़ेगा। A मान लिया खुद को, A ब्रैकेट में मी लिख दो, ठीक है। फिर बोल रहे B इज ब्रदर ऑफ A, तो भाई है, B जो है वो ब्रदर है मेरा, ठीक है, बी जो है वो ब्रदर है मेरा, ये पहले लाइन से पता चल गया। खुद को ए मान लिया मी, अब ए हम लोग का ये कैरेक्टर क्या है, मेल फीमेल, वो पता नहीं चला है, फिलहाल इतना पता है कि ए जो कैरेक्टर है उसका एक भाई है जो कि बी है। अब बोल रहा है कि हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, अच्छा तो बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी जो है वो ए का भाई है, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, सी की माँ है, उसकी एकलौती बहन, सी की माँ। एक ही बहन हाँ, हुज मतलब यहाँ पर किसका बात हो रहा है, ए का ही हो रहा है, ए का ही हो रहा है। ए जो है वो भाई है बी का, और उसकी एक बहन है जो कि सी की माँ है, तो एक काम करते हैं ना, उसकी बहन, ए की बहन तो ये मतलब मतलब मेरी बहन हो गई, मेरी बहन कौन है, सिस्टर, सीज मदर। हाँ, तो यहाँ पर सीज मदर कोई है सी जिसकी माँ मेरी बहन, हाँ ऐसे ही बोला है, इतना ही समझ में आ रहा है अभी तक। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, सीज मदर, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी जो है वो सी की मैटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब देखो सी की माँ तो नीचे सी आ जाएगा, ठीक है, तो सी मेरा क्या होगा, मेरे बहन की बेटी या बेटा, अब बेटी की बेटा नहीं पता, तो फिर नेफ्यू बस ये नेफ्यू या फिर नीस होगा, ठीक है, नेफ्यू, है ना, नेफ्यू, अगर लड़का हुआ तो नेफ्यू होगा, हाँ। अब ये हो गया। अब बोल रहा है कि डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, सी की मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब सी की माँ, ठीक है, तो सी की माँ तो मेरी भी माँ होगी क्योंकि सी तो मेरी बहन है, तो इसका मतलब कौन है ये, डी, डी मेरी क्या हो जाएंगी, माँ।
ये हुआ। अब कौन किसका क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए और डी का रिलेशन, तो ए जो है वो डॉटर बेटा বা या সান হয়ে যাবে हाँ डॉटर বা सन डी है, तो ऑप्शन डॉटर मतलब बी होना चाहिए। বি হয়ে যাবে हाँ ए इज डॉटर ऑफ डी, हाँ ठीक हुआ है, ए इज डॉटर। मतलब हम लोग जो खुद को माने थे उसका एक भाई है बी और उसकी एक बहन है सी, ठीक है। और ये ए वाला कैरेक्टर ये भी खुद मतलब लड़की है, मतलब सीधा बात है, दो बहन एक भाई, और बहन का शादी हो गया, उनकी एक बच्ची है, और ये माँ, ये ম্যাম এইখানে এই যে হুজ অনলি সিস্টার ইজ মাদার অফ সি, এটা বুঝতে পারলাম না। হুজ অনলি সিস্টার ইজ মাদার অফ, সেটা বুঝতে পারলে না, বলছে দেখো বি ইজ ব্রাদার অফ এ, এটা হচ্ছে বি হচ্ছে এর ভাই, এটা বুঝতে পেরেছো তো, এটা যেটা করেছি। এটা বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, এরপরে বলেছে দেখো হুজ মানে এর একমাত্র বোন হচ্ছে সি এর মা, তো এর একমাত্র বোন মানে আমার বোন, হ্যাঁ যার নামটা আমি জানি না, সে হচ্ছে সি এর মা। মানে ধরো তুমি তোমার বোনকে বোন না ডেকে তুমি তোর ছেলে বা মেয়ের দিয়ে বলছো মুখের মা, ঠিক আছে, সেই রকম নামটা দেয়নি, সি এর মা, তাহলে সি এর মা আমার বোন, তাহলে সি হ্যাঁ আমার কি, সি আমার বোনের বোন। ছেলে বা মেয়ে, সি ইজ মাদার, তো সি এর মা, সি এর মা আমার বোন, সি এর মা, সি এর মা আমার বোন, সি সি এর মা আমার বোন মানে মানে কিরকম বলবো, তোমার তোমার পিসি আছে, পিসি নাম। পিসি নেই? আচ্ছা, তো মানে আর বলছে দিদি বা বোন হ্যাঁ, মানে ধরো তোমার ভাই বোন আছে কি, হ্যাঁ আমার বোন আছে। বোন আছে, তো তাহলে খুব ভালো কথা, তোমার বোনের যখন বিয়ে হয়ে যাবে তার ধর একটা বাচ্চা হলো, তার নাম কিছু একটা ধর, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে তুমি বোন বললে না, বলে তুমি বললে অমুকের মা, শোন, বোনকে রাগাবার জন্য বললে, ঠিক আছে, সেরকমই হচ্ছে সি এর মা, সি এর যে মা সেই আমার বোন, হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো, সি এর যে মা সেই আমার বোন, বুঝতে পারলে, হুজ অনলি সিস্টার ইজ মাদার অফ সি, মানে এর একমাত্র যে বোন সে আবার হ্যাঁ সি এর মা, মানে তোমার একমাত্র বোন, সে কিন্তু তোমার বোনের ছেলে বা মেয়ে, তার নাম সি, তার মা, এইটা বলেছে ঘোরাবার জন্য, হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। বুঝতে পারলে তো, হ্যাঁ ম্যাম। सी एल माया। अच्छा, तो अब चलो 6th नंबर वाला बोल रहा है, यहाँ पर बहुत सारा चीज बोल के, व्हाट इज बीज रिलेशन टू एस, बी और एस का रिलेशन क्या है, खुद को क्या मानना है, बी या एस, एस क्या है, आर और एस ब्रदर है, और बी अगर मानोगे ए और बी सिस्टर है, लगभग एक ही कंडीशन में है, बस ब्रदर और सिस्टर का फर्क है, जो मानना चाहो मान सकते हो। ए एंड बी आर सिस्टर, तो खुद को हम लोग क्या मान लें, बी मान लेते चलो, क्या हुआ, पहला वाला नहीं समझ में आया, ये समझ, दूसरा वाला पहले। दूसरा वाला मेरे कैलकुलेटर मामा निकल रही, मामा तो हमको कहा ए एंड बी आर सिस्टर, ए और बी बहने हैं, ठीक है, तो ए और बी बहने हैं, तो ये खुद को अगर हम बी मान रहे हैं तो सिस्टर, ठीक है, तो ये बी जो है ये फीमेल है, इसका मतलब अगर दोनों बहनें हैं तो ये फीमेल हो गए, ए एंड बी आर सिस्टर्स, अच्छा, आर एंड एस ब्रदर, अच्छा, एस डॉटर इज आर सिस्टर, ए की जो बेटी है, तो एज डॉटर, एज डॉटर मेरी क्या हो जाएंगी, मेरी बहन की बेटी, तो मेरी नीस, ठीक है, तो उसका नाम नहीं दिया है तो मैंने बहन की बेटी लिख दिया एज डॉटर, ठीक है। अब ए की जो डॉटर है वो है आर सिस्टर, मतलब इसकी मेरे बहन की फिर और एक चाइल्ड है जिसका नाम क्या है, आर, आर बोल रहे हैं ना, एज डॉटर इज, ए की डॉटर जो है वो आर की सिस्टर है, तो आर आर इसका मतलब वो भी मेरा क्या हो सकता है, या तो नीस है, वो पता नहीं चल रहा है, वो तो पता नहीं चल रहा है ना कि नीस है कि नेफ्यू, वो तो क्लियर नहीं बाबा,
अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है आर एंड एस ब्रदर्स। अब क्लियर हो गया, आर और एस ब्रदर है मतलब, हाँ तो फिर इधर कर देते क्योंकि जगह नहीं, या फिर बेटर होगा इधर एरो लगा देते। तो ये मेरा कंफर्म, ये मेरा क्या हो गया, नेफ्यू, और ये भी मेरा नेफ्यू। ठीक है, तो इसका मतलब दो लड़का है और एक लड़की है। मेरे बहन का दो लड़का है एक लड़की है, ये बोल रहा है। अब बोल रहे व्हाट इज बी रिलेशन टू एस, बी के साथ एस का रिलेशन क्या है। तो मामा, मामा नहीं होगा, बहन, ओ बहन है, दोनों बहनें हैं, तो फिर मौसी, हाँ मौसी हो जाएगी। तो मौसी यानी आंट। ऑप्शन क्या आंट का ही है, हाँ ये তোমাদের হয়েছে এটা। और अगर ये मेल होता तो फिर मामा भांजा, नेफ्यू है, मामा भांजा यही होता। মাসি কি করে হলো? এই তো বি আমি, আমার বোন এ, ঠিক আছে, আমার বোনের একটা আছে, আর আবার বলেছে যে এর একটা, এ হচ্ছে আর এর বোন, আর আর এস দুজনে ভাই, তাহলে এরা তিনজন ভাই বোন হলো না। হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে আমার নেফিউ হলো না? ও না, আচ্ছা আমার বি কি বোনের, হয়, বি কি হয় জিজ্ঞেস করেছে, হ্যাঁ নেফিউই হচ্ছে কিন্তু জিজ্ঞেস করেছে বি এস এর কে হয়, তাহলে মাসি। আচ্ছা আচ্ছা, বিএস এর কি হয়, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই তাহলে আমি আন্টি। প্রথমটা যেটা ভুল করছিলাম অনিত ধরিয়ে দিল ওই রকম। এখানটা মানে এস আচ্ছা বি হ্যাঁ। এর কে হয় জিজ্ঞেস করলে আমরা নেফিউ বলতাম। হুম, এখানে জিজ্ঞেস করেছে, বিএস এর কি হয় বলেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই জন্য মাসি হয় মানে আন্ট। হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। E is sister of B, A is father, छोड़ो। How is A related to E? E जो है वो सिस्टर है और A का क्या है, A is father, तो E मानते हैं खुद को। E ब्रैकेट में लिखेंगे मी, ठीक है। अब E जो है वो सिस्टर है B, तो E मतलब फीमेल, हाँ। अब भाई बहन है कि नहीं वो नहीं पता चल रहा है। E सिस्टर है B का, तो B भाई है कि बहन वो भी नहीं पता चला, तो B या तो ब्रदर या तो सिस्टर में से कोई एक। अच्छा, अब बोल रहा है ए इज फादर ऑफ सी, सी तो अभी तक मेरे पास है नहीं सिनेरियो। बी इज सन ऑफ सी, बी जो है वो सी का बेटा है, तो बी এরা সব यानी, ম্যাম ভাই বোন তাহলে। हाँ तो फिर बी जो है वो सी का बेटा है, यानी सी मेरे क्या हो जाएंगे, या तो फादर या फिर मदर, वो मुझे नहीं पता चल रहा है अभी। वो तो पता नहीं चल रहा है, अब आगे पढ़ के देखते पता चलेगा कि E is sister of B, A is father of C। और अच्छा A जो है वो C के फादर है, ठीक है, तो A ওটা जो है ग्रैंड फादर, हाँ। लेकिन माँ के तरफ से है कि पापा की तरफ से वो नहीं पता चल रहा। अगर माँ के तरफ से हो तो मैटरनल, और ऑप्शन भी नहीं दिया पैटर्न। दिया नहीं है तो फिर छोड़ते हैं। तो फिर यहाँ पर बोला हाउ इज ए रिलेटेड टू ई ना, तो ए हो जाएगा ग्रैंड फादर। तो ये वैसे चाहिए भी नहीं, ये वाला मुझे चाहिए भी नहीं, चाहे माँ के माँ हो या पापा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे तो ये दोनों में रिलेशन पूछा है। तो फिर ग्रैंड फादर हो जाएगा 7 का, ग्रैंड फादर। एक बार देख ले ऑप्शन सही हुआ है कि, हाँ ग्रैंड फादर। तो फिर ग्रैंड फादर मतलब ऑप्शन ए হয়েছে তোমাদের। হ্যাঁ ম্যাম। Eighth, A is the mother of B, C is the son of A, D is the brother of E, is the daughter of B। अच्छा, who is grandmother of D? D मान लेते खुद को, D की दादी कौन है, D, D खुद को मान लेते हैं। अब D का कुछ रिलेशन बोला है, हाँ बोला है D भाई है E का, तो इसका मतलब ये मेल कैरेक्टर है। D जो है वो E का भाई है, तो E या तो मेरा ब्रदर होगा या तो मेरा सिस्टर। वो तो नहीं, D इज ब्रदर ऑफ E बोला है। अच्छा डी है, हाँ मुझे पता नहीं किसका ब्रेन है। हाँ
नहीं मतलब वो भाई है कि बहन है वो नहीं पता, लेकिन नेक्स्ट लाइन में पता चल जा रहा है। देखो ई इज डॉटर, तो इसका मतलब ये सिस्टर ही हुई, ब्रदर नहीं होगा। तो फिर ई जो है वो किसी की डॉटर है, मतलब मेरी बहन हो गई, इज डॉटर ऑफ बी। तो बी मेरे पेरेंट्स में से कोई एक होंगे, या तो फादर या तो मदर। ठीक है, अब देखते हैं। सी इज सन ऑफ ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है वो बी की माँ है, तो मेरी क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर। ए इज मदर ऑफ बी और सी इज सन ऑफ ए। सी जो है वो ए का बेटा है, सी जो है वो ए का बेटा है, तो एक ही बात मतलब यहाँ पर आ जाएगा सी ए का बेटा। तो फिर मेरे पापा या मम्मी जो भी हैं उनके, मतलब मेरे लिए अंकल हो जाएंगे। हाँ, अगर पापा की तरफ से है तो ताऊ चाचा, और अगर माँ की तरफ से है तो फिर मामा। ठीक है, अब पूछा क्या है, ग्रैंड मदर, बी के ग्रैंड, वो तो पहले ही पता चल गया। ए, हाँ, इतना सब जरूरत भी नहीं है। ए ऑप्शन ए, आंसर भी ए दिया। তোমাদের হয়েছে এটা আটেরটা? হ্যাঁ ম্যাম। এটার আনসারটা ये है तो ये গ্র্যান্ড মদার। चीज हो जाएगा, ठीक है, पता नहीं हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, खुद को ए या सी में से कुछ मानना है। ए मान लो, ठीक है, ए मान लो। ए खुद को मी मान लिया। ए इज डीज ब्रदर, मतलब ये मेल है। ए जो है वो डी का ब्रदर है। अब ये डी मेरा या तो ब्रो होगा या तो सिस। ठीक है, अच्छा, डी इज बीज फादर, तो डी का एक बच्चा भी है ना, डी इज बीज फादर बोला है। अच्छा, तो फिर मेरे भाई या बहन का बेटा बच्चा मेरा क्या हो जाए, अब क्या होगा वो, कोई भी एक हो सकता है, नेफ्यू भी, 19। क्योंकि अभी तक तो पता नहीं चल रहा है लड़का है कि लड़की। अच्छा, फिर बोल रहा है बी एंड सी आर सिस्टर, हाँ पता चल रहा है, बी एंड सी सिस्टर, तो ये वाला नहीं, ये होगा बी एंड सी। अब इसके और है, मतलब दो नीस है, ये दोनों सिस्टर है तो दो नीस होंगे। अच्छा, बी एंड सी आर सिस्टर, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, हाँ मेल है तो अंकल। तो ब्रदर की तरफ से हुआ, अगर ये ब्रदर है तो फिर ताऊ चाचा, वैसे इसमें जरूरत नहीं, अंकल से हो जाएगा। और अगर बहन की तरफ से हुआ तो मैटरनल अंकल यानी मामा हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, सिर्फ अंकल, तो ऑप्शन डी। তোমাদের হয়েছে নয়টা? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा, 10, how is A related to D? A is B's sister, D is C's father, तो A ही मानना पड़ेगा। A is related to D, A, खुद को A मान लिया। A is B's sister, तो ये फीमेल है, B की सिस्टर है। अब B ब्रदर भी हो सकते हैं मेरे या फिर सिस्टर। A is B's sister, C is B's mother, तो B की माँ जो है वो मेरी भी माँ है, C is B's mother, C is B's mother, D is C's father, D is C's গ্র্যান্ডফাদার father, হয়ে যাবে। C's father, ग्रैंड ग्रैंडफादर, और ब्रैकेट में हम लोग मैटरनल लिख सकते हैं क्योंकि माँ के तरफ से। अच्छा, B is C's father, E is D's mother, E जो है, अच्छा बाबा, और एक ऊपर जाएगा, E जो है वो D ग्रेट की ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मदर, मदर। वो भी मैटरनल। এটা উপরে। হ্যাঁ বল। গ্র্যান্ডফাদার দেখছি A related to D, A এর সাথে D এর রিলেশন, A related to D, গ্র্যান্ডফাদার, গ্র্যান্ড ডটার হবে না? হ্যাঁ গ্র্যান্ড ডটার। হাউ ইজ A related to D, গ্র্যান্ড ডটার, গ্র্যান্ড ডটার, D অপশন।
यहाँ से चाबी बनाने तो पेपर खत्म हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर तो हम लोग इतना लिख रहे हैं, वहाँ क्या तुम लोग इतना लिखोगे? मतलब यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, वहां इतना लिखने का जरूरत नहीं, और बहुत ज्यादा एक ही टॉपिक पे तो होगा भी नहीं, उतना भी कम जगह नहीं होगा, रेलिवेंट चीजों को करने के लिए जगह रहेगा। अपने तो जगह खाली पन्ना नहीं था। नहीं, कुछ नहीं लेके जाना है सिवाय पेन पेंसिल ये सब। ম্যাম এক্সট্রা পেজ দেবে না ওরা? হ্যাঁ থাকে, ওর সাথেই থাকে, ওএমআর শিটটা দেবে যখন কোয়েশ্চেন পেপারটা দেয়, ওর সাথেই থাকে। ম্যাম ওটা ছাড়া আর দেবে না পরে? না, ওর সাথেই অ্যাটেস্ট থাকে, তো যথেষ্ট থাকে করার মধ্যে। अच्छा देखो 11 वाला, हु इज अंकल ऑफ जी, तो खुद को जी मान लेते हैं। जी इज ब्रदर ऑफ सी, जी इज ब्रदर ऑफ सी। अब सी का पता चल रहा है कि सी इज डॉटर ऑफ ए, तो सी सिस्टर है मेरी, कंफर्म। सी जो है वो ए की डॉटर है, तो ए, अब ए कौन है? एफ इज ब्रदर ऑफ ए। ম্যাম মাদার বা ফাদার হবে? हाँ, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है ना। और एफ इज ब्रदर ऑफ ए, तो एफ जो है वो ए के भाई है। एफ तो मेरे क्या हो जाएंगे? अंकल। माँ या पापा के भाई, तो मेरे अंकल मतलब मामा भी हो सकते हैं अगर मदर हुआ तो। के इज सिस्टर ऑफ ए, के तो है ओके, এফ হবে, হ্যাঁ এদিকে করে দিচ্ছি, কে সিস্টার মানে আমার আন্ট। এটা এফ হবে, কোনটা এফ হবে? 11টা। আনসার বলছো? আচ্ছা কে আনসার, ইজ দ্য সিস্টার হ্যাঁ অফ? হ্যাঁ, এফ হচ্ছে আঙ্কেল অফ জি বলেছে, হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে, ডি হবে। আচ্ছা, জি ইজ ব্রাদার অফ সি, জি ইজ ব্রাদার অফ সি, কে ইজ সিস্টার অফ এফ, কে ইজ সিস্টার অফ এফ, ঠিক আছে। সি ইজ ডটার অফ এ, সবই করে নিলাম, সি ইজ ডটার অফ এ। हु इज अंकल ऑफ जी, जी का अंकल कौन है? तो जी का अंकल एफ, जी का अंकल एफ है, यानी ऑप्शन डी। বলো এটা হয়েছে তোমাদের? অনেকের তো হ্যাঁ হ্যাঁ হয়েছে। ম্যাম। बी रिलेटेड टू ई कैसे होगा? तो बी जो है, बी, हाउ इज बी, बी का तो, एंड डी सन ऑफ बी, और ई का बोला है ई इज ब्रदर ऑफ ए, तो खुद को ई मान लेते हैं, ई इज ब्रदर ऑफ ए। ए इसका मतलब ब्रदर या सिस्टर है मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, अब ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ बी। ई और ए नहीं पता, देखते हैं। ई इज ब्रदर ऑफ ए, ए इज फादर ऑफ सी, ए जो है वो सी के फादर है, तो ये मेरा भाई है, तो भाई का बेटा या बेटी। अब सी कौन है? सी का कुछ, सी सिस्टर ऑफ डी, मतलब ये, मतलब ई मेरी क्या हो जाएगी? भाई की बेटी। ম্যাম নেফিউ, ও আচ্ছা নিস, এটা হ্যাঁ বেটি। ठीक है, तो सी सिस्टर ऑफ डी, तो सी जो है डी की बहन है, मतलब डी जो है वो नेफ्यू या नीस में से कोई एक होगा, पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा है फिलहाल। अच्छा, अब ये कर लिया, अब बोल रहा है ए इज फादर ऑफ सी, हो गया। डी इज सन ऑफ बी, तो डी जो है वो पता चल गया, बेटा है, सन ऑफ, डी इज सन ऑफ बी बोला है, मतलब बी का भी बेटा है, तो ए का भी है बी का भी है, मतलब ए की वाइफ है, ए की वाइफ है बी, तो मेरी क्या हो जाएगी? मेरे भाई की
वाइफ मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ, मैम सिस्टर इन लॉ, हाँ। सिस्टर इन लॉ हो जाए। अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या था, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। अच्छा, बी के साथ ई का रिलेशन क्या है, तो बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ई, ऐसा आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए, सिस्टर इन लॉ। अच्छा, तो कौन सा हाँ है? मैम। ये जो ए तो भाई है, इससे उसकी कोई लेके नहीं थी। सी सी डी से, सी और डी दोनों भाई बहन। भाई बहन हो गए। अब बोल रहा है कि डी बी का भी बेटा है, तो वैसे ए का भी तो वो बेटा है, तो ए तो ब्रदर है, मतलब ए तो डी का क्या हो गया, फादर हो गया, मतलब ये पापा हो गए। तो बेटा मतलब पेरेंट्स हो जाता है ना, तो फिर पापा है तो दूसरे जो कैरेक्टर है वो फिर क्या हो जाए, माँ, मतलब माँ का भी बेटा। ठीक है, तो मतलब पेरेंट्स के लिए होता है ना चाइल्ड, तो फिर वैसे ही हो गया। तो ए का भी बेटा, बी का भी बेटा, मतलब ए और बी दोनों फिर कपल हो गए। अच्छा, 13 इसमें बोला है व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, ई टू डी, ई टू डी, ई इज सन ऑफ सी, ई मान लेते खुद को, ई जो है वो बेटा है सी का, ए का ए का भी बोला है, सी इज वाइफ ऑफ बी, अब सी इसका मतलब माँ है, और बी की वाइफ है, मतलब ये दोनों मम्मी पापा हो गए ई के, तो ये फादर, C is wife of B, E is son of C, A is brother of B, और पापा के जो भाई है वो है A, मतलब मेरे अंकल, मेरे अंकल, कजन आ रहा है D, हाँ कजन बोला है। A is brother of B, ठीक है, A is brother of B हो गया, एंड फादर ऑफ D, A is brother of father of D, मतलब इसका एक बेटा है D, मतलब मेरे अंकल का बेटा, तो मेरा कजन ब्रदर हो जाएगा, हाँ मैम। मेरे पापा के भाई उनका बेटा, तो ताऊ चाचा के बच्चे तो मेरे क्या हो जाएंगे, कजन ब्रदर बोलते हैं ना, बेटा है तो कजन हाँ ब्रदर, मैम। और अगर बेटी होता तो कजन सिस्टर। ए इज डी ब्रदर हबना ऑफ, तक। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी, ई से डी का रिलेशन क्या है, कजन ब्रदर हो जाएगा, अगर ब्रदर होता तो भी, ये भी मेल है ये भी मेल बता रखा है, तो कजन, तो ब्रदर हाँ मतलब कजन, कजन हो गया। एम इज द सन ऑफ पी, अच्छा बोल रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, एम इज, एम मान लेते खुद को, तो बेटा है मतलब मेल है, सन ऑफ पी, तो पी क्या हो जाएगा, फादर या मदर, पी के लिए कुछ बोला है, हु इज हस्बैंड ऑफ पी, इसका मतलब पी माँ होगी, क्योंकि उनका हस्बैंड पूछ रहा है, तो ये कंफर्म हो गया ना, ये मदर होगा, उन लोगों का बेटा है। हाँ, M is son of P, Q is the granddaughter of O, who is the husband of, अच्छा, Q is the granddaughter of O, जो कि Q जो कि ग्रैंडडॉटर है O का, जो कि हस्बैंड भी है P का, ऐसा बोल रहा है ना, who is the husband of P, हाँ क्वेश्चन मार्क तो नहीं है ना, तो who is the husband of P, तो जो कि P के हस्बैंड है, P के हस्बैंड कौन हस्बैंड है, पी ताहले। हाँ Q के ग्रैंड डॉटर, Q is the granddaughter of O, who is the husband of P, मतलब P के हस्बैंड क्या हो गए O, तो फिर ये फादर, who is the, Q is the granddaughter of O, Q जो है वो मतलब माने ग्रैंडडॉटर ऑफ माने एयर बाচ্চা, ग्रैंडडॉटर, পীর হাজবেন্ডটা ও নাকি ছেলে বা মেয়ের ছেলে হয়ে যাবে। तो पापा है, लेकिन वो पापा है। आंसर तो बोला एम इज सन ऑफ ओ, हाउ इज ओ एम रिलेटेड टू ओ, एम तो हम लोग का बेटा था।
एम और ओ के अंदर रिलेशन, हाँ एम और ओ के अंदर रिलेशन तो बेटा और यही हो गया, और ये क्यू क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, डॉटर हो रहा है ना, ये देखो क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, तब हम लोग 3 जनरेशन हो गया इसमें। मेरा भी वैसे ये जरूरी नहीं है कि क्यू का ढूंढे हम लोग, क्योंकि आंसर तो बस एम और ओ के बीच का पूछा है जो कि बन गया है, एम और ओ के बीच का रिलेशन हो जाएगा बेटा है, यानी ऑप्शन ए है। বলো তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা না বুঝতে পারলে না? হ্যাঁ ম্যাম 14 বুঝেছি এটা। মানে ও এর নাতি, তো ও এর নাতি কি করাবে, ও এর ছেলে বা মেয়ের বাচ্চা, তো হ্যাঁ। ও এর ছেলে বা মেয়ে তো এম, তার বাচ্চা, সেটা নিচে অ্যারো করে লাগিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ ম্যাম ম্যাম এম কে যদি মি ধরা হয় তাহলে কিউ তো ওর সান বা ডটার হয়ে যাবে, মানে ডটারই হবে। এম ইজ দ্য সান অফ, কেন আনসারটা একই আসবে, এম কে যদি মি ধরো, হ্যাঁ ম্যাম আনসার তো সেমই আসবে। হ্যাঁ আমি তো এম কেই ধরেছি, দেখো আমি তো এম কে ধরেই করেছি, তুমি কি ধরেছো? ও না ম্যাম আমি সেইটা বলছি না, মানে অ্যান্সার তো সেমই ম্যাম, আপনি লিখেছেন এম এর নিচে অ্যারো দিয়ে গ্র্যান্ড ডটার বলছে, ওখানে তো ম্যাম মি হলে তো ওটা সান বা ডটার হয়ে যাবে, সেইটা বলছি। হ্যাঁ মানে এম এর কিউ তো এম এর গ্র্যান্ড ডটার না, সেইটা বলছি। না কিউ ওটা গ্র্যান্ড ডটার, আচ্ছা এটা বলতে চাইছো ডটার ওই। লিখতে বলছো, আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলেছো, ওটা ডটার লিখতে হতো আমাকে, নাহলে তো ইন্টারপ্রিটেশনটাই ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমার মেয়ে, আমার মেয়ে, তবে এর হচ্ছে গ্র্যান্ড ডটার, ঠিক বলেছো। अगर एक का अंतर ऐसे है तो दूसरे का भी तो अंतर ऐसे ही होगा। अच्छा 15 में पूछा है व्हाट इज टी टू आर, टी और आर के बीच का रिलेशन, तो टी एंड एस, एस इज ब्रदर ऑफ टी and maternal uncle of X. R is the father of Y. तो S R is father और T के लिए क्या बोला है? S is brother of T and maternal uncle of X. बेटर है R ही मानो, R ही मानो, खुद को R मान रहा है। R जो है वो फादर है Y का, तो मेरा बेटा कौन है, बेटा या बेटी Y है। R is father, तो ये मेल, ठीक है। R is father of Y, X and Y are brother, तो X और Y ब्रदर है, तो इसका मतलब दोनों ही मेरा बेटा है, ठीक है। X और Y ब्रदर है, R is the father of Y, S is the brother of T, S is the brother of T, अभी तो T है नहीं मेरे यहाँ पर, एंड मैटरनल अंकल ऑफ X, अच्छा S जो है वो T का भाई है और X का मैटरनल अंकल है, तो X का मैटरनल अंकल मेरे बेटे का मामा, तो भाई का भी मामा ही हुआ। हाँ Y का ব্রাদার ইন ল হবে আমার। না আমার ব্রাদার ইন ল হবে, ব্রাদার হবে তো, আমার ছেলের মামা, মানে আমার ছেলের মামা মানে তো আমার বউয়ের ভাই হলো, হ্যাঁ তাহলে ম্যাম। আমার ব্রাদার ইন ল হবে, হ্যাঁ এটা ঠিক বলেছো, আমার ব্রাদার ইন ল, হ্যাঁ तो फिर मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, तो इधर लिखते मतलब इसको कैसे लिखे, भाई है तो ऐसे एरो देके लिखते हैं, कौन है मैट टी, एस इज ब्रदर ऑफ टी एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स, तो एस जो है वो मेरा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, एस जो है वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, एस जो है वो टी का भाई है, तो टी फिर मेरा कौन है, चांसेस है कि टी मेरा क्या हो जाएगा, और तो कुछ बोला नहीं तो वाइफ ही होगा ना, टी का मेरा ब्रदर इन लॉ एस है और वो टी का भाई है, तो इसका मतलब मेरे হ্যাঁ वाइफ, ম্যাম তাহলে ওটা ওয়াইফই হয়ে যায়।
तो आंसर की बोले व्हाट इज टी टू आर, टी आर आर এর মধ্যে হ্যাঁ, তো হাজবেন্ড ওয়াইফ হাজবেন্ড ওয়াইফ হ্যাঁ তো টি কি হয়ে যাচ্ছে, কে হাজবেন্ড হলো এখানে, টি না টি টি ওয়াইফ, টু আর মানে টি এর আর টি কে ইজ ওয়াইফ অফ আর, हाँ आर हस्बैंड हो गई। मतलब मेरे बेटे का मामा जो है वो मेरा ब्रदर इन लॉ हुआ, और मेरे ब्रदर इन लॉ का मेरा ब्रदर इन लॉ जिसका भाई है ऐसे बोला, तो फिर मेरी वाइफ, तभी तो ट्री कंप्लीट होगा, नहीं तो होगा भी नहीं। अब ये एक्सरसाइज आ रहा है, एक्सरसाइज 12 हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी या ए खुद को क्या मानोगे, ए इज ब्रदर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ सी, तो ए मान लेते हैं खुद को, ए इज ब्रदर ऑफ, ए इज बीज ब्रदर, बीज ब्रदर, बी ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, यानी सी, ऑप्शन सी। लग तो रहा है सही हुआ है, सी ऑप्शन तो मैंने लिख रखा है, सी ब्रदर थी, ब्रदर वाला ऑप्शन तो है, सी ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर, अब हाँ ठीक है सी, हाँ देख लो मेरे यहाँ হ্যাঁ पर গ্র্যান্ডফাদার হবে ম্যাম এটা सी है। सी हो गया यहाँ पर, सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर, डी जो है वो सी के फादर मतलब গ্র্যান্ডফাদার হ্যাঁ is D's father, अच्छा grandfather, and E is B's son, E is B's son, আমার নেফিউ ম্যাম তাহলে nephew, how is D related to A, D A A ফাদার গ্র্যান্ডফাদার grandfather, And deep is and he is mother. नहीं वो deep की माँ, अगर इसकी माँ या अगर मेरी बुआ होगी तो यानी कि मतलब मेरे बाप की मेरी बुआ की यानी मम्मी दादी थी, हाँ दादी दादी and B is related to B is related to ना होगा दादी होगा फिर ना दादी फिर ना how is B related to E, तो खुद को क्या माने, B मान, B लिख दिया, how is A is B's brother, A is B's brother, तो A जो है वो B का भाई है, तो B जो है वो ब्रदर हो गया, A is B's brother, C is A's father, तो मेरा भी फादर ही हो जाएगा, सिस्टर is A's father, D is C's sister, D जो है वो C की सिस्टर मतलब बुआ, आंट हो जाएगा हाँ, D is C's sister and E is D's mother, तो हाँ इनकी माँ तो इनकी भी माँ हो जाएगी, हाँ E ग्रैंड, हाउ इज B रिलेटेड टू E, B के साथ E का क्या रिलेशन है, तो B ग्रैंड डॉटर बा ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन हो जाएगा E का, पोता या पोती, पर यहाँ पर तो ब्रदर है तो उसको मत लीजिए वो एक ब्रदर होना चाहिए कुछ नहीं दिया, ग्रैंड डॉटर आंसर दिया है तो ग्रैंड डॉटर होगा,
मतलब बी तो ये तो मेल है कि फीमेल वो तो अभी तक पता नहीं चला। पता चल गया ये अच्छा नहीं वो ये इसका भाई ये पता नहीं चला, तो फिर ऑप्शन जो देगा वही मान लेना है। मतलब ये मतलब ये फीमेल, ठीक है। ग्रैंडसन या ग्रैंडडॉटर हाँ, अब दो ऑप्शन दिया नहीं है तो ग्रैंड डॉटर, तो इसका मतलब वही लेना पड़ेगा। Then how is A related to D? तो खुद को क्या मान लें? A मान लें? इसका ए है मतलब ये तो पता है ई नहीं पता पर ये तो फीमेल है ना फीमेल A is B's sister, तो ये कंफर्म, ये फीमेल। A is B's sister, तो B ब्रदर या सिस्टर कुछ एक हो सकता है। सी बेटा हो बी का मतलब बेटा C is B's mother, C is B's mother, तो मेरी भी माँ। बी इज C's फादर सी का फादर है बी C is B's mother, D is C's father, तो C के फादर D मेरे हो जाएंगे ग्रैंड फादर। C is D's কয়টা গ্র্যান্ডডটার হবে? granddaughter है। D is C's father, E is D's mother, वो सेम टाइप ऑफ दिया ये वाला भी। E जो है वो D की मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर। जी लिख दिया, नाम लिख दिया ग्रेट ग्रैंड मदर। देन हाउ इज A रिलेटेड टू D? A D का कौन है? গ্র্যান্ডডটার অফ हाँ, ये अब कंफर्म की ग्रैंड डॉटर ही होगा क्योंकि ए फीमेल है, ये पता है। अब इसमें अगर ग्रैंड डॉटर के साथ ग्रैंड सन का भी हो तो वो नहीं लेना है ऑप्शन नंबर को, ग्रैंड डॉटर ही लेना होगा। लिख डी। A is father of B, C is daughter। अच्छा पूछा क्या, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन C एंड E? तो C और E में से खुद को कुछ एक मानना है। C is daughter of B और E का क्या है? E is son of A। E मान लो क्या? E E जो है वो A का बेटा है, मतलब ये मेल है। A इसका मतलब फादर या मदर। A is father of B, A B का भी फादर है, तो फिर ব্রাদার বা সিস্টার হয়ে যাবে। ब्रदर या सिस्टर। A is father of B, C is daughter of B, तो B की डॉटर है C, तो मेरी क्या हो जाएगी? नीस। C is daughter of B, D is brother of B, B के और एक भाई है D, मतलब मेरे भी भाई। D is brother of B हो गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C एंड E? तो C और E के बीच का रिलेशन नीस niece। और নিস है। अंकल, तो ये वाला ऑप्शन C उसमें है। What is R to P? P is husband of Q, R is mother, जो भी मानो तुम लोग के साथ तो मैच हो नहीं पाएगा। ठीक, कुछ तो एक मानना पड़ेगा, P मान लेते। P जो है वो किसी के हस्बैंड है, मतलब मेल है, ठीक है। P is husband of Q, तो P की वाइफ Q, and R is mother of S and Q। মাদার ইন ল হয়ে যাবে। है R जो है वो Q की माँ है, हाँ, तो फिर P की मदर इन लॉ। আর পি এর শুধু মা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আর এখানে এসও আসবে যেটা ওয়াইফের ভাই বা বোন, तो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ, मतलब एस जो है वो पी का ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ हो रहा है।
हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? तो क्यू और आर में रिलेशन क्या हो जाएगा? মাদার হবে। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? মাদার হবে না ম্যাম এটা? হ্যাঁ তাই হওয়া উচিত। অপশন কি আছে গো? नहीं आंसर डी दिया। ये क्या होगा? नहीं गलत हो गया शायद मेरा भी। R2P বলেছি তো। देखिए ना P और Q अगर हस्बैंड वाइफ है और आर टू पी बोला है। हाँ तो R अगर उसमें R2P बोल दिया बोले कि तो मैम R जो है mother ही वो होगी। मतलब Q जो है वो R की बेटी है तो R तो सबसे बड़ी गई तो R तो वो Q की अगर वो निकली मतलब माँ। ऐसे माँ निकली हाँ तो मतलब जो हस्बैंड हुए हाँ हस्बैंड के भी तो वो माँ ही होगी तो हाँ। जो बेटा होगा उसका तो फिर वो होगी ना मतलब मदर इन लॉ ही तो हो रहा है फिर आंसर। आंसर ठीक है R मैंने is the mother in law of P, R আর P এর বলেছি আমি আমরা এটা Q দেখে আর এটা বলছি। হ্যাঁ আমি এটা দেখে নিয়েছি हम सिक्स्थ वाला देख के और उसके साथ क्यू और आर है ना तो इसीलिए गलत हो जा रहा है। व्हाट इज आर टू पी? तो आर पी के क्या है? मदर इन लॉ। तो ये क्यू के ऊपर जो है मैंने एरो लगाया इससे बेटर है कि पी के ऊपर एरो लगाओ क्योंकि आर जो है वो क्यू की थोड़ी ना मदर इन लॉ है वो तो पी की मदर इन लॉ है क्यू की तो माँ है। হুম तो ये बेटर हो ये वाला नहीं होगा। P and ওদের Q অ্যারো are লাগানো যায় এটার উপরে লাগাতে হবে যেটা মি হবে সেটার উপরেই সব অ্যারো গুলো যেতে হবে মানে সেটার থেকেই লাইন করে করে যেতে হবে সেটার সাথে রিলেশনের হিসেবে করতে হবে। R and S are sisters. হ্যাঁ P এরপরে বলছে S is P son P and Q এরপর 6টা করো P and Q are brother R and S sister P son is SS brother how is Q related to R? तो Q और R में से खुद को कुछ एक मान सकते हैं R मान लेते हैं P son is S brother. R मान लेते हैं बोल रहा है कि R and S are sister तो R मी फीमेल R और S सिस्टर है तो दोनों ही फीमेल तो R और S सिस्टर ठीक है। अच्छा मैंने ये वाला लिया R और S सिस्टर P सन इज SS ब्रदर S का एक भाई भी है तो S का जो भाई है वो मेरा भी भाई है SS ब्रदर जो है वो मेरा भी क्या है भाई हुआ ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि P सन P का बेटा S का भाई है P का बेटा P तो मैंने अभी तक बनाया नहीं P एंड Q आर ब्रदर Q भी मेरा नहीं है P एंड Q आर ब्रदर R एंड S आर सिस्टर मैंने R और S लिया है R S दोनों बहनें हैं P का जो बेटा है वो S का भाई है। अच्छा तो S का भाई P का बेटा है मतलब ये एरो इसके ऊपर लगेगा P इसके क्या हो जाएंगे P ম্যাম ওটা নেফিউ হয়ে যাবে। P तो इसका मतलब एसेस ब्रदर जो है P का He जो is the बेटा son अच्छा of मैंने एसेस SS ब्रदर लिख दिया P का बेटा S का भाई है तो S तो ऑलरेडी लिखा था तो ये मुझे P ये लिखना चाहिए था P's सन तब ना ठीक होगा ये गलत लिखती है P's सन। अब ठीक है लैंग्वेज P का जो बेटा है वो S का भाई है ठीक है P का जो बेटा है वो S का भाई है P और Q ब्रदर है तो P's सन के ऊपर P बना लेते हैं P जो है P's सन का क्या हो जाएगा फादर ठीक है। अब P और Q दोनों भाई है हाँ यहाँ पर P और Q दोनों जो है भाई है तो अंकल हो जाएंगे ना क्योंकि मैं मेरी बहन और मेरा भाई तो उनके फादर और ये तो क्यू मेरे क्या हो जाएंगे अंकल ছেলে আমার ভাই। माने बेसिकली पी तो इसका मतलब देखो पी इसका मतलब मेरे भी तो फादर हो जाएंगे ना হ্যাঁ ম্যাম ওটাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম এক্ষুনি যে আমারও তাহলে ওর বাবাই হয়ে যাবে। মানে পি পি এর তিনটে সন্তান আর এস আর একটা নাম আছে যেটা দেয়নি পির ছেলে বলে দিয়েছে না আর এস আর একজন আর পি এর ভাই হচ্ছে কিউ এইভাবে করলে বেটার
मैम এটা আঙ্কেল হয়ে যাবে তাহলে, হ্যাঁ আঙ্কেল। अंकल मेरी जो बेटी है W, उसका जो अंकल माने 6A। है वो अभी तो ग्रैंडडॉटर को 7 वाला ग्रैंड हाँ अच्छा, इसमें बोला है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ n टू y। तो x is husband of y, w is daughter of x, z is husband of w, n is daughter of। पूरा जनरेशन वाइज वो करके दिया है। हाँ एक एक दे दिया है, ठीक है। तो हम एक बार ड्रॉ कर ही देते हैं, खुद को n मान लिया, ठीक है। n फिर बोल रहा है कि n इज डॉटर ऑफ z, तो यहाँ ऊपर z आ जाएगा, डॉटर यानी फीमेल। n इज डॉटर ऑफ z, ফাদার বা মাদার তো n is daughter of z, z is husband of w, z जो है वो तो ये फादर हो गए, z is husband of w, तो w माँ हो जाएगी, हाँ ठीक है। z is husband of w, w is daughter of x, w जो है वो x की डॉटर है, मतलब x मेरी क्या हो जाएगी, গ্র্যান্ড ডটার, গ্র্যান্ড মাদার বা ফাদার। ग्रैंड m और, ठीक है। और x इज द हस्बैंड ऑफ y, तो x इसका मतलब ग्रैंड फादर, और हस्बैंड ऑफ y मतलब y मेरी क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर, ये बनेगा, ठीक है। अच्छा पूछा है कि n टू y, n टू y, तो फिर Grandmother. ग्रैंड जो है ग्रैंड डॉटर, n y के তাহলে নাতি হয়, নিশ্চয় গ্র্যান্ড ডটার, হ্যাঁ 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 ম্যাম, গ্র্যান্ড ডটার অফ ওয়াই। হ্যাঁ, কে কাজ সেটার উপরে কিন্তু হু ইজ n টু y, তাহলে n থেকে y তে অ্যারো নিয়ে যেতে হবে, তাহলে n টু y মানে গ্র্যান্ড ডটার মানে d। तेरे पापा की बड़े पापा या मम्मी, ठीक है, बोला भाई A reads a book and find the name of the author familiar. The author B is the paternal uncle of C. C is the daughter of A. How is B related to A? 8 का A है ब्रदर, हाँ। How is B related to A? अब खुद को B मान सकते हो या A, लेकिन A का तो यहाँ कुछ A बोला है, C is the daughter of A. How is B related to A? B is the paternal uncle of C. A मान लो खुद को, A मान लो। अच्छा देखो बोल रहा है कि A reads a book and find the name of the author। अब बुक्स में जो ऑथर का नाम था वो उसको फैमिलियर लगा, ठीक है। द ऑथर B, ऑथर कौन है, B है, वो पैटर्नल अंकल है C का, C जो है वो डॉटर है A की, तो पहले A के डॉटर C, तो ऐसे नीचे लगाते हैं डॉटर, C जो है वो A की डॉटर है, A को हम मी मान लिए हैं, तो ठीक है। इसके बाद C इज डॉटर ऑफ A, C इज डॉटर ऑफ A, और बोल रहा है द ऑथर B जो है वो पैटर्नल अंकल है C के, C के पैटर्नल अंकल मतलब पापा की साइड से जो अंकल, मतलब ताऊ या चाचा, ভাই হয়ে যাবে। ভাই হয়ে যাবে, তাহলে আমরা আঙ্কেল প্যাটার্নাল আঙ্কেল বলেই দিয়েছে, তাহলে ভাই হবে কনফার্ম, তাহলে আঙ্কেল হয়ে গেল। মানে আমার আঙ্কেল নয়, আমার ব্রাদার লিখতে হবে আমাকে, তবে ঠিক হবে না। আমার ক্ষেত্রে আমি ব্রাদার লিখবো। তো বলে হাউ ইজ বি রিলেটেড টু এ, ব্রাদার, হ্যাঁ, ঠিক আছে। রিলেটেড টু এ ব্রাদার। 9 ए, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो सी जो है 21 ईयर ओल्ड है, His mother is still बी मान लो, मैं बस ये सुनना पड़ेगा
कौन सा? यहाँ पे लिखो ए मदर इज सिस्टर ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ? एज मदर मतलब ए की जो माँ है वो बी की बहन है। मैम सिस्टर ताहले আমার। मतलब बी लड़का है लड़की है पता नहीं। अच्छा सी मैंने खुद को सी मान लिया, ठीक है। फिर बोल रहा है सी का, देखते क्या बोला है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड सी हैज अ डॉटर सी। अच्छा सी किसी की बेटी है, तो मतलब हम किसकी बेटी है बोल रहे हैं। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी, ए की माँ जो है वो बी की बहन है, एंड सी हैज अ डॉटर सी। तो सी की माँ कौन है? सी की माँ ए हो, ए नहीं हो, बी हो गई। बी। বি আর A's তো mother বোন is sister of B. She has a daughter C, She has a daughter C. मतलब बी है ना उसकी। A's mother is sister of B. A की जो माँ है वो B की बहन है, and C has a daughter. शी इसमें कौन है ये सब? He has a daughter C who is 21 year old. अच्छा मतलब C एक फीमेल है जिसका एज 21 है। एज मदर, ए और ए की माँ, तो ए और ए की माँ मतलब ऊपर करते हैं एज मदर। ये छोटा सा बना लिया। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। अब ए की जो माँ है वो बी की सिस्टर है, मतलब ये फीमेल है, ठीक है। ये बी की सिस्टर है। बी जो है वो अच्छा सिस्टर बन गया। अच्छा बोल रहा है एंड सी हैज ए डॉटर, मतलब किसका डॉटर? फिर ए का ही होगा। बीटा हाँ कि वो फीमेल है। हाँ अगर यहाँ पर मतलब बी में नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। देखो डॉटर तो मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी हो सकता है। वहां पर शी लिखा हुआ है ना, मतलब शी मतलब तो कोई सी मतलब ए का ही बात हो रहा है ना, इसका मतलब। शी का हाँ तो इससे पता चल रहा है वो माँ भी है, ऊपर से सी भी हो रहा है, तो ये फीमेल। सी हैज अ डॉटर, तो इसका मतलब ए का ही बात हो रहा है, क्योंकि कंफर्म की वो फीमेल है। बी का तो भी पता नहीं चला ना। तो फिर सी की जो माँ है वो कौन हो गई? सी की जो माँ वो कौन हो गई? ए एज मदर। एज मदर वो सी की भी मदर है, तो ए मेरे क्या हो जाएंगे? भाई या बहन, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर। और बी का क्या केस है? बी जो है वो यहाँ पर भाई या बहन, मतलब मेरे अंकल या आंट। तो यहाँ पर ऑप्शन है मैटरनल अंकल। हाँ तो फिर वही होगा, ये देखो मैटरनल अंकल, तो वही हो जाएगा मेरे माँ के तरफ से भाई या बहन। तो अब बहन है नहीं, तब तो फिर मैटरनल आंट होता। तो अंकल है तो फिर मैटरनल मतलब मामा। बी फॉलो তোমাদের হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম। मैम नहीं समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। शी में ही शी का ही था, मतलब शी बोला ना मेरे को उसकी बहन में बात हो रही है। A's mother is sister of and C has. शी जो लिखे ना उसे ये दे दो। A is B's brother, C is A's mother, D is C's father, F is A's son। F और D का रिलेशन पूछा है, तो F is A's son। F मान लेते खुद को। F जो है वो A का बेटा है, तो मेल कंफर्म। F is A's son, A is B's brother, तो ये फादर हो गए। A is B's brother, तो B मेरी अंकल या आंट, पता नहीं अभी। C is A's mother, C जो है वो A की माँ है, मतलब मेरी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। C is A's mother, D is C's father, C के फादर, यहाँ एरो करते जगह नहीं है। C is, या फिर ये ऑप्शन बी को हटा देते हैं तो जगह हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी, ये सी हो गया, सी के फादर। डी इज सी's फादर, सी आ रहा है आंसर। ग्रेट ग्रैंड, हाँ और ये ग्रेट ग्रैंड, डी क्या था?
সি ইজ ফাদার, তো গ্রেট গ্র্যান্ড কি বলে এটাকে, গ্র্যান্ড ফাদার। এফ রিলেটেড টু টি, তো গ্রেট গ্র্যান্ড সন, অপশন সি। বলো হয়েছে, অপশন সি গ্রেট গ্র্যান্ড সন। হ্যাঁ ম্যাম। A is B's brother, C is A's mother, D is अच्छा, how is B related to D? How is B related to D? B, A is B's brother, B मान लेते खुद को, A is B's brother, तो A जो है वो B का ब्रदर है, तो ये मेल या फिर फीमेल नहीं पता। A is B's brother, C is A's mother, तो C अगर A की माँ है तो इसकी भी माँ हो। C is A's mother, D is C's father। হ্যাঁ বলো। ওটা গ্র্যান্ডফাদার হবে। গ্র্যান্ডফাদার, এটা 11টা করছি। গ্র্যান্ড ডটার বলছে যে नहीं हो रहा है। हम लोग रिलेशन मतलब निकाल के पूरा समझ गए बस। क्वेश्चन तब देखो कुछ पढ़ने में गलत हो रहा है। हाँ वो पढ़ने में देखो, बी के साथ डी, बी से डी को देखो, बी के तरफ से देखो, मतलब खुद को बी मानते हुए देखो, समझ। बी से अगर डी देखेंगे तो हम लोग के लिए तो वो ग्रेट ग्रैंडफादर जिसका बात हो रहा है, लेकिन आंसर तो कुछ और ही है, ग्रैंड डॉटर। इसका मतलब बी यानी कि वो लड़की, मतलब हम लोग को डी से डी को देखना होगा यहाँ। अच्छा देखते हैं, यहाँ तक तो बना मेरा। ये डी वाला, डी क्या है, डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है, मतलब ग्रैंड फादर। अच्छा फिर उसके बाद डी सीज फादर, ई इज बी सन, ई जो है वो बी का बेटा है, तो बी का बेटा ई, बेटा या बेटी? हाँ बेटा, वो तो डॉटर होगा ना, ये तो बेटा बोल ही दिया। इज बी सन, इज बी सन, ठीक है। तो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? बी डी के साथ कैसा रिलेटेड है, तो डी तो हो गया माँ के पापा, मतलब ये क्या बोलते हैं, मतलब हम लोग तो बोलते हैं द्वैता द्वैती, तुम लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। तो मतलब आप क्या करेंगे फिर से बोलिए? द्वैता द्वैती, नहीं मतलब इसमें रिलेशन में है क्या? रिलेशन में मतलब मैं, मेरी माँ और उनके फादर, तो मतलब मेरे ई के साथ अगर देखो तो द्वैता, ये मतलब क्या हो गया, नाना जी हो गए ना, ग्रैंड फादर, नाना जी। हाँ तो फिर नाना माने दादू हैगा। मतलब ई के हाँ बी कैसे रिलेटेड है, तो बी डी की कौन है, तो बी डी की क्या है, या तो नहीं, बी कौन है, वो नाना तो डी हो गए, तो গ্র্যান্ডসন হবে না ई এটা? डॉटर भी हो सकती है ना नाती, नातिन हुई ना, नाती या नाती। अब वो तो ऑप्शन देखने से पता चलेगा। अच्छा ऑप्शन में तो ग्रैंड डॉटर दिया हुआ है तो फिर इसका मतलब ये फिर फीमेल हो जाएगा ना। বলো বুঝতে পারলে এবারে? হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি। গ্র্যান্ড ডটার কেন হচ্ছে? আমি তাহলে বি হচ্ছে ফিমেল, তাই হচ্ছে। হ্যাঁ বি ফিমেল, ওটা ওটা আমরা আনসার দেখে বুঝবো, এমনিতে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু নাতি বা নাতনি কিছু তো একটা হবে না, হ্যাঁ ম্যাম। দাদু দিক থেকে, তাহলে how is B related to F's child? F is A's son, तो खुद को F's child मान लो, ठीक है, जो सबसे F's child मान लो, तुम लोग के लिए आसान होगा, ट्री F's child, तो F कौन हो गया, F हो गया फादर या मदर, देखते हैं। F is A's son है, तो ये फादर, F जो है वो A का बेटा है, तो A मेरे क्या हो जाएंगे, ग्रैंड फादर या मदर। अब देखते हैं A के बारे में कुछ पता है, A is B's brother, तो ग्रैंड फादर, A is B's brother, तो मेरे दादाजी, मतलब दादाजी के भाई, तो वो भी मेरे क्या हो जाएंगे, ग्रैंड अंकल।
माने दादूर भाई तो दादू ही हवे, मतलब दादाजी के भाई तो ग्रैंड अंकल ही हुए, वो भी दादाजी ही कहलाएंगे। अच्छा, ग्रैंडफादर ही लिखा हुआ है ऐसा है, ग्रैंडफादर है ऑप्शन, ग्रैंड अंकल। सी इज एज मदर, सी जो है यहाँ पर डी जो है, डी तो हम लोग इससे पहले वाले में निकाल लिए कि वो फीमेल है, तो ग्रैंडफादर कैसे हो गया डी? इसको थोड़ी भी बोले बी के बारे में। बी ग्रैंड अंकल हो रहा है, फादर नहीं हो रहा है, क्योंकि ए इज बीज ब्रदर बोला है, तो ग्रैंड अंकल या आंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो अभी कंफर्म नहीं है, अगर चाहिएगा तो देखेंगे हम लोग। और सी बोल रहा है कि डी इज सीज फादर। अच्छा, इसके ऊपर डी जाएगा, पहले तो मुझे सी बनाना है। सी इज एज मदर, सी जो है वो एक ही माँ है, तो ग्रेट ग्रैंड मदर। और डी इज सीज फादर, ये और एक एरो जाएगा, तो डी को क्या लिखेंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर लिखा जाएगा। हाँ, जितना आगे पीढ़ी बढ़ेगा ग्रेट ग्रेट जुड़ जाएगा। ग्रेट ग्रैंड मदर ये है ग्रेट ग्रेट, ये क्या हो जाएगा, क्या है, सीज डीज फादर, डी सीज फादर, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ये हो गया। अब एफ इज ए सन, ये तो हो गया। हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, उतना पूछा ही नहीं है। बी के साथ एफ के बेटे का क्या रिलेशन है, तो बी वो भी तो ग्रैंड अंकल, हाँ, तो ऑप्शन है नहीं, तो फिर उसको भी हम लोग ग्रैंड फादर बोलते, बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग ग्रैंड फादर बोल सकते हैं। मतलब ग्रैंड फादर मतलब तो दादाजी हो गया, बट दादाजी के भाई तो वो भी ग्रैंड फादर, फादर ही हो। हाँ फादर। अच्छा, तो ये पूरा नया रिलेशन ऊपर वाला और सबके साथ कोई लिंक नहीं करना है। नहीं नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं है ना उतना तक हमें से। जैसे वो 10 से लेके 12 तक सेम क्वेश्चन, बस एक एक पीढ़ी आता जा रहा है। तो इसमें जैसे हम लोग का 12 11 में हम लोग ने बी को फीमेल मान लिया, माना नहीं, वो तो आंसर मतलब के वजह से माना, हाँ तो इसमें हम लोग उसको लिंक नहीं करेंगे, इसमें पूरा नया निकालेंगे वैसे। हाँ। उसमें भी वैसे नहीं तो सेम ही रख सकते हैं, बस उसमें अगर हम लोग वो नहीं मानेंगे तो ऑप्शन से देखा तो ऑप्शन देखो, अगर कोई मेल फीमेल आइडेंटिफाई हो जाता है तब तो देखो वही माने, जैसे ये ब्रदर है, अब इसके साथ कुछ भी पूछेगा तो इसके ऊपर मेल वाला कैरेक्टर ही फिक्स होगा। अब जिसपे हो नहीं रहा है लेकिन उसका रिलेशन किसी के साथ पूछा है, तो अब रिलेशन कुछ तो निकल के आएगा, अगर लड़का हुआ तो इस तरीके से, मतलब जैसे नीस नेफ्यू, हाँ, तो अब ऑप्शन देख लो कि अब नीस लिखा हुआ है कि नेफ्यू, तो उसके हिसाब से चला जाए। तो हम लोग मेन ऑप्शन में हाँ हाँ, अगर मेल फीमेल नहीं समझ में आया और उस पे मुझे क्वेश्चन पूछा, जैसे बी पे पूछा था और उस पे मेल फीमेल क्लियर नहीं था, तो ऑप्शन से देख लिया, और अगर मेल फीमेल क्लियर होता तो फिर हम लोगों की मान लो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन दोनों दिया हुआ है, तब तो हम लोग ग्रैंड डॉटर पे ही टिक करेंगे ना, कि मुझे अगर पहले से पता चलता है क्वेश्चन पढ़ के कि बी मेरा फीमेल है, तो फिर मुझे फीमेल वाले ऑप्शन पे ही टिक करना पड़ेगा। बोलो, 12টা বুঝতে পারলে? হ্যাঁ ম্যাম। Thirteen. A is B's daughter, B is C's mother, D is how is D related to A? D या A में से मान लेते, D मान ले, D। अब देखो बोल रहा है D is C's brother, तो इसका मतलब D मेल है, अब ये पता चल गया। अब D पे कोई क्वेश्चन होगा तो मेल वाले हिसाब से ही चलना पड़ेगा। D is C's brother, तो C, अब C या तो उसका भाई है या तो मेरा भाई या बहन में से कुछ एक देखना पड़ेगा। B is C's mother, तो C की जो माँ है वो तो मेरी भी माँ है। B's mother, अच्छा, A is B's daughter, A is B's daughter, तो B की डॉटर मेरी भी बहन हो जाएगी, तो ये मेरी सिस्टर होगी, ठीक है। D के साथ A का रिलेशन क्या है, D जो है वो ब्रदर है A का, अब ये कंफर्म कि ब्रदर ही ऑप्शन में टिक करना है ना, क्योंकि मुझे तो पता है ना डी मेल है, तो फिर डी ब्रदर ही होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं कि हाँ ए का भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेल पहले से पता है, तो भाई होगा कंफर्म, तो भाई या बहन कुछ भी होगा, ऐसा कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं बच रहा है।
हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी, बी एंड सी सिस्टर, और एक का अगर देखे ए इज डी इज ब्रदर, कुछ भी कर सकते हैं, सी मान लो, बी एंड सी सिस्टर, बी और सी अगर सिस्टर है तो दोनों ही फीमेल हो जाए, बी और सी सिस्टर। अच्छा, फिर डी इज बीज फादर, बी के फादर है डी, तो मेरे भी फादर, डी इज बीज फादर, ए एंड डी इज ब्रदर, और ए और डी भाई भाई है, तो ए मेरे अंकल हो जाएंगे, पापा के भाई मेरे अंकल, पापा के भाई मेरे अंकल हो गए। और हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी के साथ ए का रिलेशन क्या है, तो भतीजी हो जाएगी, मतलब क्या होगा ये, नीस होगा, भतीजी हो गई ना, चाचा और भतीजी, तो नीस। बी বলো হয়েছে 14 এরটা। হ্যাঁ ম্যাম। है मैम। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी या ई में से खुद को क्या माने, डी इज सी इज फादर, ई इज बी सन, तो ई मान लेते, ई बेटा है बी का, तो ई मेल है क्योंकि ये बेटा है किसका, बी का, तो बी मेरे फादर या मदर, माँ या पापा, तो देखते हैं, ए इज बी इज ब्रदर, ए जो है वो बी के भाई है, ए इज बीज ब्रदर, तो मेरे क्या हो जाएंगे, अंकल। अब पापा के तरफ से वे तो नॉर्मल सिर्फ अंकल लिखने से होगा, मतलब मैटरनल या पैटर्नल, पता नहीं क्या होगा, ठीक है, मतलब मामा भी हो सकते हैं या फिर ताऊ चाचा भी हो सकते हैं ना। तो अब उसके बाद ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की माँ है, तो अंकल की माँ तो मेरे पापा की भी माँ, तो मेरी दादी या नानी, ग्रैंड मदर। अब इसमें भी वही मैटरनल या पैटर्नल क्या होगा वो डिपेंड करता है, ए इज बी इज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सी इज फादर। अच्छा, अब इस डी इज सी इज फादर मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर। अब ये भी मैटरनल या पैटर्नल कंफ्यूजन रह ही रहा है, बाकी पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी ई के साथ कैसे रिलेटेड, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी। सी हमें यहाँ ऑप्शन। हाँ, मुझे मैटरनल या पैटर्नल बोला नहीं है, तो ग्रेट ग्रैंड, 16 का डी होगा। X and Y are children of A. A is father of X, but Y is not his son. How is Y related to A? तो खुद को Y मान लेते हैं एक बार, Y के साथ A का क्या रिलेशन है, तो बोल रहे X एंड Y आर चिल्ड्रन ऑफ A, तो X Y दोनों भाई बहन हो जाएंगे, ब्रदर और सिस्टर। ये मेल है कि फीमेल वो देखना पड़ेगा, अगर पता चला तो X एंड Y आर चिल्ड्रन ऑफ A, तो इनके पेरेंट्स जो है वो A है। अब A फादर है कि A इज फादर ऑफ X, A जो है वो फादर है X के, बट Y इज नॉट हिज सन, तो Y उसका बेटा नहीं है बोल रहा है, तो बेटी है, मतलब ये फीमेल हो जाएगा, मतलब A इन दोनों के बच्चे हैं, बट ये घुमा के बोला है कि Y उसका बेटा नहीं है, मतलब बेटी है, ठीक है, बेटा नहीं है मतलब बेटी है। हाउ इज Y रिलेटेड टू A, Y के साथ A का रिलेशन क्या है, तो बेटी है, डॉटर। बोलो समझ में आया नहीं ये, তোমাদের হয়েছে 17 का बी। How is E related to A? E is B's son, A is B's brother, C is A's mother, क्या माने, how is E related to A? A is B's brother, E मान E।
ई इज बीज सन, तो फिर बी का बेटा ई है, मतलब ये मेल है। बी जो है वो फादर या मदर। बी हो गया। ए कौन सा वाला? 70। ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो बी के भाई, मतलब मेरे हो जाएंगे अंकल, मैटरनल या पैटर्नल। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर। सी इनके मतलब ग्रैंड मदर। मैटरनल या पैटर्नल लगभग इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसे कह रहा। सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी के फादर है, ग्रेट ग्रैंड फादर। मैटरनल और पैटर्नल। डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन। ई इज बीज सन वो कर लिया। बोल रहा है ई रिलेटेड टू ए। ई कौन लगता है? ए का। अच्छा, तो अंकल और ये मेल है तो नेफ्यू। ऑप्शन बी बोलो, नेफ्यू एसছে তোমাদের? সতেরোটা হয়েছে তোমাদের? হ্যাঁ ম্যাম। Based on the statements given, we'll find out who is uncle of P. तो हम खुद को P मान लेंगे। P मान लिया खुद को। फिर बोल रहे P is brother of N, तो ये मेल है। 18 का A। हाँ, P brother of N, तो N ब्रदर या सिस्टर देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर बोल रहा है कि N is daughter of J, तो फिर N सिस्टर है। तो J इनके पेरेंट्स, इसका मतलब J फादर या मदर। N is daughter of J, P is brother of N, P is brother of N, M is sister of K, वो तो अभी तक है ही नहीं मेरे पास। K is brother of J, J के ब्रदर है K, यानी मेरे अंकल। अब K रिलेटेड और क्या दिया है? M is the sister of K, M तो मेरी आंट। मैटरनल या पैटर्नल। फाइंड आउट हु इज अंकल ऑफ पी। पी के अंकल कौन है? के। पी के अंकल के हो जाएंगे ए। ऑप्शन ए 18 बोलो। 18 এর এ হয়েছে তোমাদের? 19 का भी ए कजिन। 18 এরটা এ হয়নি? হ্যাঁ ম্যাম এই হচ্ছে। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? खुद को डी मानेंगे, ऐसे रैंडमली मान लिया, सी भी मान सकते हो। डी ए इज मदर ऑफ टी, डी की माँ है ए। अच्छा, और क्या है डी से रिलेटेड बात? B has a daughter C who is married to F. G is husband of A. A and B are sister. A और B sister है, मतलब मेरी आंट। मैटर, ठीक है, आंट, मेरी आंट है B। A and B are A is mother of D. B has a daughter C. B की एक बेटी है जिसका नाम है C. B की एक बेटी है जिसका नाम है C, तो मेरी मौसी की बेटी यानी मेरी कजन, कजन सिस्टर, कजन सिस्टर। सी हु इज मैरिड टू एफ, इनका शादी हो गया है। एफ, एफ मेरे क्या हो जाएंगे? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। एफ मेरे ब्रदर इन लॉ। जी इज हस्बैंड ऑफ ए। अच्छा, ए के हस्बैंड है जी, मतलब मेरे फादर। अच्छा, पूछा क्या है? हाउ इज सी रिलेटेड टू डी? सी के साथ डी का रिलेशन क्या है?
कजिन सिस्टर कजिन मतलब অপশন এ 19 এটা অপশন এ হয়েছে তোমাদের नहीं और वो एक ही बहन है वाई हाँ मैम वाई एस तो वाई मेरी इच्छा को मेरी बहन है वाई तो उससे अगर बहन से 20 এটাই বললাম R and S are brothers X is sister of what is Y to S Y और S में क्या रिलेशन है तो खुद को कुछ भी मान सकते हैं Y या S में से कुछ एक C मान लिया ठीक है Y या S में से कुछ भी मान लिया अच्छा बोल रहा है R and S brothers ये हम वाई थोड़ी मेंशन किया है वाई का मतलब नहीं पता R and S are brothers मतलब ये भी R and S brothers X is sister of Y X is sister of Y and X is mother of R X जो है वो 20 का भी A है X is mother of R तो फिर S की भी माँ ठीक है और X और Y जो है वो भाई बहन है तो अंकल यहाँ पर बोला है X and Y X is sister of Y What is Y to S Y के साथ S का क्या रिलेशन अच्छा ये अंकल या आंट में से कुछ भी हो सकता है तो Y के साथ S का मतलब रिलेशन हो जाएगा क्या आंसर दिया हुआ है अंकल तो फिर वो मेल है मतलब ये वाला 20 का ওটা হ্যাঁ বলো ম্যাম এখানে আর এস হ্যাঁ বলো কেটে গেল কথাটা ম্যাম বলছি এখানে আর আর এস হচ্ছে দুই ভাই হ্যাঁ तो वो मेरी X আর হচ্ছে আর এস मतलब मेरे भाई মা মানে হ্যাঁ মা মানে এসেরও মা হ্যাঁ এসেরও মা হ্যাঁ। আর ওয়াই হচ্ছে ওয়াই এক্স এক্স এর ইজ সিস্টার অফ ওয়াই মানে আমার মা হচ্ছে ওয়াইর বোন আমার মা হচ্ছে ওয়াই এর বোন হ্যাঁ মানে তাহলে- ওয়াই ভাই হতে পারে তাহলে বা ওয়াই বোন। আমার হ্যাঁ এবারে মায়ের যদি ওটা ভাই হয় তাহলে মামা হবে আর যদি বোন হয় তাহলে মাসি হবে তাই হ্যাঁ জন্য আঙ্কেল বা আন্ট লিখেছিলাম আচ্ছা কিন্তু ম্যাম মামা হলে তো এখানে ম্যাটারনাল অপশনের জন্য ঠিক আছে অপশনের জন্য এখানে আঙ্কেলই দিয়েছে না তার মানে ওটা আমাকে কি মানতে হবে ওটা মেল ওটাই মানতে হবে হ্যাঁ ম্যাম ম্যাম ওটা ঠিক আছে আমি বলছিলাম মানে ওই ম্যাটারনাল আঙ্কেলটা তো তাই ও ম্যাটেরিয়াল আঙ্কেল দেয়নি অপশন ঠিক আছে যদি হ্যাঁ। দেয় আমরা ওটা লিখবো নাহলে শুধু আঙ্কেলই লিখে দেবো ঠিক আছে দেয়নি যদি অপশনে আঙ্কেল আর ম্যাটারনাল আঙ্কেল দুটো দেয় আর যদি ম্যাটারনাল আঙ্কেলের ব্যাপারটা কনফার্ম থাকে তাহলে ম্যাটারনাল আঙ্কেলই লিখতে হবে হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে If he is the son of E, which are the following, he is the son of E and E हमें नाम ही नहीं। ठीक है आज इतना ही करते हैं If D is the son of ম্যাম স্যারকে একটু ওয়েট করতে বলবেন আমরা আসছি মানে বেরোবো এখন আচ্ছা ঠিক আছে হাই ম্যাম হুম 22 by